friends, today we are going to talking about the classification of world. Diversity in living organisms. There are so many differences between plants, animals and human beings. Some are eukaryotic, some are prokaryotic, some are some are autotrophic, some are heterotrophic. Okay. Now next, blue whale is a jane. Blue whale is a game. And the lengthiest tree in the world is redwood, which is known as sequoia also. Now classification. Classification. Classification is defined in the ancient era. It is decided that we will do the classification in ancient era. The father of zoology and biology is Aristotle. Next, we will talk about why classification is important. Classification is important. It helps us to study about the wide varieties of the organisms and living beings in the world. Let us see an example. जैसे कि हम लोग को कोई भी अगर किसी भी एनिमल्स ने कट किया या फिर किसी भी एनिमल्स ने हम लोग को डंक मारा तो हम लोग को बहुत दर्द होगा, हम लोग बहुत परेशान होंगे, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, इलनेस हो सकती है और हम लोग कई दिनों तक बीमार भी पड़ सकते हैं एंड इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए हम लोग को अगर हम लोग ने उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते होंगे जिसने हमें काटा है तो हम उससे रिलेटेड मेडिसिन को ढूंढ सकते हैं, उससे रिलेटेड मेडिसिन को खाकर जो है ठीक हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन था उनकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैरेलियस लिनियस। अब हम बात करते हैं कैरेलियस लिनियस। कैरेलियस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी आप सभी के लिए डिफरेंट वर्ड होगा, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ जो कैरेलियस लिनियस थे उन्होंने तो किंगडम को मतलब वो दो किंगडम को उन्होंने ढूंढा। ठीक है, वो दो किंगडम की फाउंडर कौन थे? वो दो किंगडम चलिए पढ़ते हैं। एनिमैलिया एंड प्लांटेन। वो दो किंगडम थे जिसको कैरेलियस लिनियस ने ढूंढा। ठीक है, जो एनिमैलिया था और जो प्लांटेन था उन्होंने उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेस के ऊपर ढूंढ निकाला था। ठीक है, तो जो एनिमैलिया और प्लांटेन थे उन्होंने उसको उसके फिजिकल और स्ट्रक्चरल बेस पे ढूंढा था। जो मैं आपको सभी का एक एग्जांपल देती हूँ। एनिमैलिया का है पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा, और वी कैन से फाइलम नाइडेरिया। एंड प्लांटेन का दो मतलब ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि क्लोज सीडेड प्लांट्स, कोन बियरिंग ट्रीज, मॉसेस एंड फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, अब देखिए इन्होंने, अब मैं आपको बताती हूँ किंगडम और स्पीशीज के बीच का डिफरेंस। Largest unit of the classification, largest unit, and species is the smallest unit, Now one more amazing fact about this kingdom and species is there is not much differences in the kingdom. Means there are
are so many different types of kingdom, like kingdom Plantae, kingdom Plantae and Animalia. So there is not so much differences between these two. But in the smallest species, there are so many differences. At the topper level, the differences are less, and at smallest level, the differences are very much. Okay, this is the fact. Now, now we will talk about the mistakes of the Caribbean lilies. Our first example is mushroom. Mushroom don't have chlorophyll. They are heterotrophs. Mushrooms don't have chlorophyll. They are heterotrophs, but they considered the mushroom in the plant. First mistake of carrying these leaves, and it is the biggest mistake. Next mistake is bacteria. Bacteria are bacteria are bacteria is written plant categories because it has cell wall. But he considered that bacteria is in the animal. This is the second mistake. What is about bacteria? Now there are some plants they have the both type of categories, Animalia and Plantae. Means they have both types of features. Okay, they are heterotrophic also, they are autotrophic also, they are prokaryotic and they are eukaryotic also. So they did not consider that some plants in any type of. तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कुछ प्लांट्स जो कि प्लांट्स की तरह और एनिमल्स की तरह दोनों की तरह बिहेव कर रहे थे, उन प्लांट्स को और एनिमल्स को इन्होंने किसी भी फिक्स पोजीशन पर नहीं रखा. फॉर एग्जांपल यूग्लेना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस. They don't know about virus, what is virus, what symptoms it has. उनकी भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं रखी उन्होंने, क्योंकि वो भी यूग्लेना की तरह थे. उनके कुछ पार्ट्स प्लांट की तरफ शो कर रहे थे और कुछ पार्ट्स उनके एनिमल्स की तरफ थे. इसलिए उनकी भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं रखी गई. और अगर तब इन्होंने उनकी फिक्स पोजीशन रख दी होती तो ये जो हम लोग कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे थे, ये इतना बड़ा वो ना होता, इतना बड़ा ये वायरस ना होता अगर इन्होंने तभी उसको क्लासिफाई कर दिया होता. ठीक है. तो ये रही कुछ गलतियां, मिस्टेक्स ऑफ कैरिनिस लीनियस. जब कैरिनिस लीनियस ने इनको क्लासिफाई किया प्लांटे और एनिमलिया को, तो जैसा कि अभी मैंने वीडियो में बताया, इनकी बहुत सारी मिस्टेक्स के कारण इनकी जो क्लासिफिकेशन थी उनको लोगों ने मानना कम कर दिया. धीरे धीरे इनकी क्लासिफिकेशन का सन्नाटा हो गया. ठीक है. अब आए आर.एच. मैकैकर. आर.एच. मैकैकर का पूरा नेम है रॉबर्ट. जो आर.एच. मैकैकर थे उनका पूरा नाम था रॉबर्ट हार्डिंग मैकैकर. अब कैरिनिस लीनियस थे, उनके क्लासिफिकेशन के बंद होने के बाद ये रॉबर्ट हार्डिंग मैकैकर आए और इन्होंने खुद क्लासिफाई किया. ठीक है. इन्होंने किस बेस पर क्लासिफाई किया अब हम ये जानते हैं. इन्होंने यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सबसे पहला इनका जो बेस था जिनके ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी वो था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. नेक्स्ट था यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. आर.एच. मैकैकर की जो क्लासिफिकेशन थी वो 5 किंगडम्स के ऊपर बेस्ड थी. उन्होंने 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया, जिनमें से 2 किंगडम को पहले ही कैरिनिस लीनियस ने क्लासिफाई कर दिया था. अब
उनके 5 किंगडम जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफाई किए। अब इनके एक एक एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं हम लोग। मोनेरा का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गे। जो मोनेरा का एग्जाम्पल है वो है ब्लू ग्रीन एल्गे। क्रिटिक्स्टा का एग्जाम्पल है पैराफिशिया। फंगाई का एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट्स। एनिमालिया का एग्जाम्पल है स्पंजेस एंड प्लांटेन एग्जाम्पल है मॉसेस। मॉसेस, ferns, close-seeded plants, corn-bearing trees, ये सभी प्लांटाई के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय।